ایک انسان کے لیے یہی برائی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی تحقیر کرے۔ ہر مسلمان کی 3 چیزیں دوسرے مسلمان پر حرام ہیں: اس کا خون، اس کی آبرو، اس کا مال۔ اکثر مسلمان ممالک میں تو اب خون بھی حلال ہو گیا ہے، اور دوسری 2 چیزیں تو پہلی حلال تھیں۔ بدنصیبی یہ ہے کہ پاکستان میں شاید اس وقت دوسرے تمام مسلمان ممالک کی نسبت بھائی کا خون زیادہ ارزاں ہو چکا ہے۔ بھائی کا تو اور معاملہ ہے، ہمیشہ ہر روز ایسی اندوہناک خبریں پڑھنے کو ملتی ہیں کہ کسی نے اپنی ماں کو قتل کر دیا، اپنے باپ کو قتل کر دیا، اپنی بہن کو قتل کر دیا، اپنی بیوی بچوں کو قتل کر دیا، اور روزمرہ کا دستور بن چکا ہے کہ ذرا سی ادنا سی ناراضگی پر انسانی خون لے لیا جائے، اور چھوٹی چھوٹی بات پر یہ دھمکی دینا کہ ہم تو جان لے لیں گے۔ کوئی خدا کا خوف باقی نہیں رہا۔ اس کا آغاز حضور فرماتے ہیں بے رخی سے ہوا تھا۔ جب سوسائٹی میں ایک دوسرے سے بے رخی پیدا ہو جائے تو جو سفر اختیار کرتی ہے سوسائٹی، یہ اس کی آخری منزل ہے۔ تو بے رخی کو معمولی نہ سمجھیں۔ جب آپ کے پاس کوئی آتا ہے اس کی عزت افزائی کریں، اگر وقت نہ بھی ہو تو کچھ جہاں تک ممکن ہے اس نے سلوک کے ذریعے اس کے دل میں یہ بات جاگزی کرنے کی کوشش کریں کہ آپ اس سے برتر نہیں ہیں، آپ اس کی خاطر چاہتے ہیں، اس کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، لیکن وقت کی مجبوری ہے۔ اگر اس بنیاد پر آپ قائم ہو جائیں تو پھر اگلی خیر کی عمارت لازماً تعمیر ہوگی، اور شر کے ہر پہلو سے آپ بچتے چلے جائیں گے۔ لیکن یہاں اگر غلط پتھر رکھا گیا اور بے رخی کے اوپر آپ کے اخلاق کی تعمیر ہوئی تو اس کی بالائی منزلوں پر پھر خون لکھا ہوا ہے۔ اس منزل تک پہنچنا پھر لازماً ایک وقت کی بات ہے۔ کچھ عرصے کے بعد جو قومیں اس نصیحت سے بے اعتنائی کرتی ہیں وہ اس منزل تک بھی پہنچ جایا کرتی ہیں۔ 3 چیزیں میں دوبارہ بتاتا ہوں حرام ہیں: مسلمان کا خون، اس کی آبرو اور اس کا مال۔ آبرو تو اتنی حلال ہو چکی ہے کہ راستہ چلتے ایک دوسرے کی سروں سے ٹوپیاں اچھالی جاتی ہیں، بے عزتیاں کی جاتی ہیں، سخت کلامی کی جاتی ہے، گندی گالیاں دی جاتی ہیں۔ ہمارے ملک میں دیہات میں تو بدنصیبی سے ہل چلانے والا اور کچھ نہیں تو جانوروں کو ہی گالیاں دیتا چلا جاتا ہے، اور بڑی غلیظ اور گندی گالیاں۔ خاص طور پر پاکستان کو میں نصیحت کرتا ہوں، ہندوستان کو بھی، لیکن پاکستان کو بہت زیادہ نصیحت کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ ایسا ملک ہے جس کی بھاری اکثریت حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا دعویٰ کرتی ہے۔ اپنی زبان کو پاک کریں، اپنے بھائی کو اپنی زبان کے شر سے بچائیں، تو اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ باقی سب برائیاں بھی پھر مٹنی شروع ہو جائیں گی۔ اور جہاں تک مال کا تعلق ہے، یہ تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ ہر غیر کا مال حلال ہے۔ پہلے مولویوں نے یہ فتوے دینے شروع کیے کہ مسلمان کا مال تو حرام ہے، لیکن غیر مسلم کا مال بے شک کھاؤ، لوٹو، جو مرضی کرو۔ جب ایک دفعہ بدی کی راہ کھل جائے تو پھر وہ قدم کسی ایک جگہ رک نہیں سکتے، بدی تو لازماً پھر آگے بڑھتی ہے۔ اب یہ حال ہے کہ ہر ایک کا مال حلال ہو گیا ہے، اپنا مال ہے جو حرام ہے، کیونکہ اس میں حرام کی آمیزش ہو چکی ہے۔ شاذ ہی کو ایسا مال ہوگا جو واقعتاً حلال ہو، بس عملاً یہ صورت ہے کہ ہر غیر کا مال حلال بن گیا ہے، جس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا تھا، اور اپنا مال جس کو حلال بنانے پر زور دیا تھا وہ حرام ہو چکا ہے۔ کیسی بدنصیبی ہے! اس ایک حدیث میں تمام دنیا کے معاشروں کی اصلاح کے سامان موجود ہے۔ یہ 3 باتیں ہیں جنہیں اگر مسلمان اپنا لیں تو مسلمانوں کے مقدر بن جائیں، اگر غیر اپنا لیں تو ان کی تقدیریں بدل جائیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ قطع نظر اس کے کہ کسی کا مذہب کیا ہے، اگر حضور کی ان 3 نصیحتوں پر کوئی عمل کرے تو اس کی دنیا لازماً سنور جائے گی۔ اور جو 3 باتیں دنیا سنوارنے کی بیان فرمائی گئی ہیں،
ये तीनों नेकी की बातें हैं, और नेकी के नतीजे में फिर और नेकियां पैदा होती हैं। इसलिए मैं यकीन से कह सकता हूं कि इन तीन नसीहतों पर अमल करने के जरिए जिन कौमों की दुनिया संवरेगी, उनका दीन भी संवर जाएगा। दुनिया ही नसीब नहीं होगी, उनको आखिरत भी नसीब हो जाएगी। तो अल्लाह ताला अगर गैरों को तौफीक नहीं दे रहा तो अहमदियों को तो कम से कम ये तौफीक होनी चाहिए कि जिस रसूल की मोहब्बत और इश्क का दावा करते हैं, जिसकी खातिर इतनी तकलीफ़ें उठा रहे हैं, जिसका कलमा पढ़ने के जुर्म की सज़ा के नतीजे में जेलों में जाते हैं, माल लूटे जाते हैं, बाज़ारों में उनको धक्के पड़ते हैं, गालियाँ दी जाती हैं, थानों में बुलाया जाता है, जिस रसूल की मोहब्बत में ये दुख उठा रहे हैं, उस रसूल के फैज़ से अपनी दुनिया और अपनी आक़िबत संवारते क्यों नहीं हैं? इन बातों पर, अगर इन नसीहतों पर अमल करेंगे तो उस मोहब्बत की जो सज़ा दी जा रही है उससे हज़ारों लाखों गुना उस मोहब्बत का फैज़ आपको पहुँचेगा। बस बड़ी बदनसीबी होगी कि मोहब्बत के नतीजे में सज़ा तो पा रहे हैं और मोहब्बत के फैज़ से मारूम हैं। एक और मौके पर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर की रिवायत है कि बड़े गुनाह ये हैं अल्लाह ताला का शरीक ठहराना, वालिदैन की नाफरमानी करना, किसी को नाहक कत्ल करना और झूठी कसम खाना। हज़रत उम्मे सलमा बयान करती हैं कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दो आदमी आए जिनमें विरासत की मलकियत के बारे में झगड़ा था। ये झूठ का मजमून है और झूठी कसम की बात पर फिर ये आगे बात चल पड़ती है। बहुत से मुसलमान ममालिक खुसूसन हिंदू पाकिस्तान और बांग्लादेश वगैरह में इस वक्त सूरत हाल ये है कि भाई का माल हथियाने के लिए, गैर का माल हथियाने के लिए अदालतों में बेफिक्र और बेधड़क झूठी कस्में खाई जाती हैं, और उसके नतीजे में जो कुछ हासिल होगा वो क्या होगा, उस सिलसिले में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, यानी उम्मे सलमा बयान करती हैं कि हज़ूर के पास दो आदमी आए जिनमें विरासत की मलकियत के बारे में झगड़ा था और मामला पुराना हो जाने की वजह से सबूत किसी के पास ना था। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बातें सुनकर फरमाया, मैं इंसान हूँ और हो सकता है कि तुम में से कोई ज़्यादा लसान हो और बात को बड़े उम्दा अंदाज और लहजे में बयान कर सकता हो। वो सोसाइटी झूठ से पाक थी, लेकिन झूठ की बारीक किस्मों में चरब ज़ुबानी के ज़रिए गलत हक हासिल करना भी शामिल है। बस हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारीक झूठ की किस्म का जिक्र करते हुए फरमाया, हो सकता है चरब ज़ुबान हो, उम्दा तरीक़ पर बात बयान करे और मैं उससे मुतअस्सिर होकर कोई राय कायम कर लूँ और उसके हक़ में फ़ैसला दे दूँ, हालांकि हक़ दूसरे फरीक का हो। ऐसी सूरत में इस फैसले से फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए और अपने भाई का हक़ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसके लिए वो एक आग का टुकड़ा है जो मैं उसे दिला रहा हूँ। अगर वो लेगा तो क़यामत के दिन वो सांप बनकर उसकी गर्दन पर लिपटा हुआ होगा। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात सुनकर दोनों की चीखें निकल गईं और हर एक ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सारी जायदाद मेरे भाई को दे दें, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कितना आला दर्जे का ईमान था, कैसा यकीन था, कैसी मोहब्बत थी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। कितना कामिल यकीन था उन वईद पर जो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान पर जारी हुआ करते थे कि क़यामत के दिन ये तुम्हें मिलेगा। कितने हमारे क़ज़िये हैं, किस आसानी से निपट जाएं अगर इस हदीस पर इंसान निगाह रखे और अपने मामलात क़ज़ा में पेश करते हुए वाज़े झूठ तो दरकिनार, अदना से चरब ज़ुबानी के ज़रिए भी गैर का हक़ लेने से इज्तनाब किया जाए। ये अगर हो जाए तो हम जमात अहमदिया की क़ज़ा का अक्सर काम जो है वो हल्का हो जाए और मुकदमों तक नौबत ही ना पहुँचे। दरअसल इस मिजाज के लोग मुकदमाबाजी करते ही नहीं, उस तक पहुँचते ही नहीं, मुकदमों से पहले पहले उनके मामलात निपट जाया करते हैं। फिर हज़ूर ने फरमाया कि अच्छा तुम यूँ करो कि
अंदाजे से जायदाद के 2 हिस्से कर लो और फिर कुर्रा डाल लो, और जिसके हिस्से जो जायदाद का हिस्सा है वो ले ले, और अगर वो समझता हो कि कुर्रे में भी दूसरे को कुछ ज़्यादा मिल गया है तो फिर उसको छोड़ दे, उस ख्याल को दिल से निकाल दे कि भाई को कुछ ज़्यादा मिल गया है। चुनांचे उन्होंने ऐसा ही किया और इसके नतीजे में अल्लाह ताला के फजल से बड़े इब्तिला से टल गए। अब मैं हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का एक इक़्तिबास आपके सामने पेश करता हूँ। फरमाया, आज दुनिया की हालत बहुत नाजुक हो गई है। जिस पहलू और रंग से देखो झूठे गवाह बनाए जाते हैं। झूठे मुकदमा करना तो बात ही कुछ नहीं, झूठे असनाद बना लिए जाते हैं। ये आज से 100 साल पहले की बात है। अब अंदाज़ा करें कि उस ज़माने में जबकि मुकाबलतन झूठ बहुत ही कम था, हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को झूठ से कैसी कराहत थी कि वो थोड़ा सा झूठ भी जो दिखाई देता था उससे तबीयत को घिन आती थी और यूँ लगता था कि हर तरफ झूठ फैल रहा है। आज के ज़माने में जो हाल हो चुका है वो तो नाकाबिल बर्दाश्त है। यही बातें 100 गुना बढ़ा लें तो आज की हालत ये है। फरमाते हैं, कोई अमर बयान करेंगे तो सच का पहलू बचा कर बोलेंगे। कैसा प्यारा कलाम है। सच का पहलू बचा कर बोलेंगे, तरज ऐसी इख्तियार करेंगे कि सच का पता न लग जाए। जो सच बोलने वाले भी हैं वो सच से दामन बचाकर इस रंग में बयान कर देंगे कि सच की तरफ कोई बात इशारा ना कर जाए। अब कोई इन लोगों से जो इस सिलसिले की ज़रूरत नहीं समझते पूछे कि क्या यही वो दीन था जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए थे। आप तो वो दीन लेकर आए थे जिसका मैंने अभी उस हदीस में जिक्र किया है। लेकिन आज अमलन क्या हो रहा है। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, पूछे उनसे कोई, क्या यही वो दीन था जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए थे। अल्लाह ताला ने तो झूठ को नजासत कहा था, उससे परहेज़ करो। फज्तनिबुर रिज्सा मिनल औसान वज्तनिबू कौल ज़ूर। बुत परस्ती के साथ इस झूठ को मिलाया है, यानी खुदा ताला ने बुत परस्ती के साथ झूठ को मिलाया है। जैसा अहमक इंसान अल्लाह ताला को छोड़कर पत्थर की तरफ सर झुकाता है, वैसे ही सिद्क और रास्ती को छोड़कर अपने मतलब के लिए झूठ को बुत बनाता है। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने इसको बुत परस्ती के साथ मिलाया और इससे निस्बत दी। जैसे एक बुत परस्त बुत से निजात चाहता है, झूठ बोलने वाला भी यानी बुत के ज़रिए से निजात चाहता है, ये मुराद है। जैसा कि एक बुत परस्त बुत से निजात चाहता है, झूठ बोलने वाला भी अपनी तरफ से बुत बनाता है और समझता है कि इस बुत के ज़रिए निजात हो जाएगी। कैसी खराबी आकर पड़ी है। अगर कहा जावे कि ये क्यों बुत परस्ती करते हो, इस निजात को छोड़ दो, तो कहते हैं क्यों कर छोड़ दें, इसके बगैर गुजारा नहीं हो सकता। आज आप किसी जगह ये बात करके देख लें, हमेशा यही जवाब मिलेगा, ठीक है दुनिया में रहना है, गुजारा इसके बगैर हो नहीं सकता, मजबूरी। यानी अपने माबूद के बगैर कैसे गुजारा हो सकता है। जिसने झूठ को माबूद बना लिया हो वो इस बात में तो सच्चा है कि उसका उस बुत के बगैर गुजारा नहीं हो सकता। लेकिन इस बात में झूठा है कि अंजाम कार वो उसके किसी काम आएगा। झूठ का बुत हमेशा दगा करता है, अंजाम कार जरूर नुकसान पहुंचाता है। फरमाया, इससे बढ़कर और क्या बदकिस्मती होगी कि झूठ पर अपना मदार समझते हैं, मगर मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि आखिर सच ही कामयाब होता है और भलाई और फतह इसी की है। खुदा तुम्हें नेमत वही और इल्हाम और मुकालमात और मुखातबात इलाहिया से हरगिज़ महरूम नहीं रखेगा। वो तुम पर वो सब नेमतें पूरी करेगा जो पहलों को दी गईं। लेकिन जो शख्स गुस्ताखी की राह से खुदा पर झूठ बांधेगा और कहेगा कि खुदा की वही मेरे पर नाजिल हुई, हालांकि नहीं नाजिल हुई, और या कहेगा कि मुझे शर्फ़ मुकालमात और मुखातबात इलाहिया का नसीब हुआ, हालांकि नसीब नहीं हुआ, तो मैं खुदा और उसके मलाइका को गवाह रख कर कहता हूँ कि वो हलाक किया जाएगा, क्योंकि उसने अपने खालिक पर झूठ बांधा। बस वो लोग जो खुदा की मखलूक पर झूठ बांधते हैं और उससे बाक नहीं करते,
بالآخر ان کی زبانیں کھلتی ہیں، انہی میں سے وہ بدنصیب پیدا ہوتے ہیں جو خدا پر جھوٹ باندھنے لگتے ہیں، اور وہ لوگ جو خدا کے سچوں پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ بھی دراصل خدا پر جھوٹ باندھتے ہیں، کیونکہ خدا کے پاک بندوں پر جھوٹ باندھنا بھی ایسا ہی ہے جیسے خدا پر جھوٹ باندھا گیا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہماری قوم کو، احمدیوں کو خصوصیت کے ساتھ، مگر تمام مسلمانان عالم کو، بلکہ تمام دنیا کو جھوٹ کی نجاست اور جھوٹ کی خود پرستی سے نجات بخشے۔